to the highly anticipated AI in Six Sigma Conference 2024. Today we gather here to explore the fascinating intersection of artificial intelligence and Six Sigma methodologies, a confluence that compromise to revolutionize quality management and process improvement in all the industries across the globe. As we embark on this journey of discovery and innovation, we are honored to set the stage with a spiritual invocation reminding us of the ethical and moral dimensions that should guide our technological advancements. To commence our event, I am delighted to invite Mr. Rashid to recite the holy verses from the Quran. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم. We now turn our attention to our first speaker, who will delve into the practical application of machine learning and artificial intelligence. He has made significant contributions to integrating machine learning techniques into everyday processes. I would like to welcome Dr. Najeed. Please join me in welcoming him to present on everyday machine learning. Thank you. Thank you very much. Thanks, Saad and his team, inviting me here. And thanks in advance for audience who spare time on this Sunday. That is definitely the family day, but you will sacrifice your time and you can come here. So we hope we try to give some information that may be useful for you people, and maybe you will use this information in your daily life, in your practical life, and also to serve the community as well. My name is Dr. Najeed Ahmed Khan. I am professor at Delhi University Computer Science and IT Department. I am also heading a center which is called Center for Software Research and Development. I am doing a speech on my AI, but AI is getting failed due to some technology here, I think. So this is my Center for Software Research and Development. We are developing some software, we are doing some PhD level research as well as some industrial collaborations as well. So we did some work here. साथ change करते हैं ना because के time मेरा ख्याल है कि आप लोगों का ठीक है. Okay, so I am here to just say a few words about everyday AI and machine learning and its applications in our daily life. So AI, we all know that nowadays AI is very strong word, very common word, very appealing word, very attractive word in our daily life from childhood to all aged people. So AI in very short, to make machine intelligent, but in my words, to make digital brain, to create digital brain. You know, Allah Pak has given us a brain which is a biological brain consisting of some of our neurons and some other components. So scientists are trying to make digital brain, and when we embed that digital brain into any machine, then definitely that machine will also be intelligent like the human being with our brain. तो कोशिश यही है साइंटिस्ट की कि किसी तरह से डिजिटल ब्रेन बनाकर किसी मशीन में लगा दिया जाए कि मशीन जो है वो भी इंसान की तरह से इंटेलिजेंट हो जाए. So why the need of this digital brain? Why the need of AI? One very important thing is that nowadays we have a lot of huge amount of data, and this data is exponentially going to increase just due to increase of technology. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, नई नई चीजें आती चली जा रही है, डाटा की जो क्वांटिटी है ये हमारे पास ट्रेमेंडस होती चली जा रही है. कल हमारी जो नॉर्मल व्हीकल थी जिसको हम ड्राइव करते थे, मैनुअल व्हीकल थी, आज हमारी इस तरह की स्मार्ट व्हीकल है कि a lot of sensors are there and a lot of real time data is coming from that vehicle. So now it is our responsibility to use that data and make efficient
that data for our other tasks, कि हम किसी तरह से उस डाटा को इस्तेमाल करके कोई और यूजफुल काम कर डालें. This data is similar to our waste, जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं और वेस्ट हमारा बच जाता है. अगर आप उस वेस्ट को प्रॉपर्ली ऑर्डर ना करें, प्रॉपर्ली उसको साइड ना करें, तो डेफिनेटली वो डेटा हमारे लिए हमारी डेली लाइफ को बहुत ज्यादा मिजरेबल बना देगा और बना देता है. इसी तरह से ये डाटा, अगर हमने इस डाटा को भी प्रॉपर्ली एफिशिएंटली यूज नहीं किया, अगर हमने इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं फाइंड आउट किया, तो यकीनन ये डाटा भी हमारे लिए एक हैक्टिक हो जाएगा और हमारी आगे की जो प्रैक्टिकल लाइफ है, हमारा जो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा. सो इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू think about that data, how we can use this amount of data. So definitely if we aim to use that data, we should have some tools. And that is one of the tools is the machine learning. Not tool, that is the one of the technology that we can use is the machine learning. तो वो जो मेरे पास huge amount of data मेरे पास daily life में आता चला जा रहा है, किसी इंडस्ट्री से आ रहा है, किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आ रहा है, किसी और हमारी व्हीकल से आ रहा है, एस्ट्रोनॉमी से डाटा आ रहा है, इतना सारा जो हमारे पास डाटा आता चला जा रहा है, इसको अगर हमें प्रॉपर्ली यूज करना है तो वी शुड नो अबाउट सम मशीन लर्निंग. और अगर हमने मशीन लर्निंग को, इफ वी यूज दैट मशीन लर्निंग, वी कैन डेवलप सम मॉडल्स एंड दैट मॉडल्स विल बी यूज्ड फॉर आवर प्रेडिक्शंस. वो काम जो अभी हमें नहीं पता कि कैसे होने हैं, मशीन में गिव सजेशन इन एडवांस. मशीन उस डाटा को इस्तेमाल करते हुए हमें एडवांस में कुछ बता सकेगी कि जनाब आप इस डाटा से क्या क्या काम कर सकते हैं. सो प्रेडिक्टिव models can be designed with the help of that data, and we may also use for that model may be used for our common citizen as well. और common citizen के लिए अगर हम if we want to contribute something, then again AI is one of the very good platform. On that platform we may serve to our community as well. We can perform some different tasks, real-time monitoring and some other things different we can do. So this is one of our latest development that we have done. Almost it is being completed. This is one of the project under the Department of our Architecture, and this is some British Asian Trust funding as well. Actually idea was that जो लोग चिंची, कराची के लोग चिंची को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, I believe. तो कराची के कुछ एरियाज के अंदर, चिंची के अंदर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी, especially for the females, कि जनाब female were not comfortable. They face some harassment and some other problems were there. A lot of chinchis on roads are moving without any license, without any registration. लोग अपने घरों से ऐसी चिंचियाँ निकाल के बैठे चले जा रहे हैं, वो लोगों के साथ जो है वो misbehave कर रहे हैं, something else. So there was a study and again that study एक idea ये हुआ कि इसको किस तरह से monitor किया जाए. तो from my part we have designed a smart box. So this is smart box we have designed, and this smart box containing two types of things. One is the tracker and the other thing is the camera. So camera और ये दोनों चीजें इसके अंदर उसमें चिंची के अंदर एक स्पेस के ऊपर इंस्टॉल है, और इस चिंची के ऊपर जो है वो एक one of the barcode will be placed on that chinchi as well some place. So whenever कोई customer जब इसमें बैठे जा रहे हैं तो he or she will use this our application. This is mobile application, और जैसे ही आप उसका barcode स्कैन करके तो all information will come on your mobile के चिंची जो है वो registered है या नहीं है, इस चिंची का ड्राइवर का behavior किस तरह का चल रहा है, kind of like करीम के जिस तरह से हमें उसकी history पता चल जाती है, तो ये सब पता चल जाएगी. And then you may travel comfortably as well as you may share that information with your family and friends as well. And another thing, the important thing is that if you feel any discomfort or if you feel any hassle during your travel, you may press a SOS button here, a SOS button. So this information will go to the authority, and that authority will immediately turn on camera, and all the scenario will be recorded in the real time. And after that, what happens? I can't guarantee what our authority will do, but at least what we can do, this is our responsibility. तो ये मुझे भी नहीं पता कि उसके बाद होगा क्या, कि वो SOS के क्या नतीजे होंगे, मुझे नहीं पता. I'm so sorry about that. This is a complete system, but what we did like that. So how the other people can do something in AI? How you people, how a common people, how a student can contribute in AI? Definitely you should have some roadmap, and that roadmap have some 3 to 4 milestones. If you achieve those milestones, if you try to achieve those milestones, I believe you would also contribute in AI.
So first thing is we should identify the fundamental concept, foundational concepts of AI. AI hai kya, how we can contribute. So if you learn something about AI, then the second thing is that you should able to dwell with data. You should have some analytical abilities कि how you can use this data. कि data के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ शुरू कर दीजिए. Data के साथ किस तरह से आप उस data के साथ क्या काम कर सकते हैं. Data has a lot of variety. कभी imbalanced data है, कभी huge data है आपके पास, कभी काम का data है, कभी noisy data है. So first thing you should learn something about the data. And the second thing, you should learn some platform on which you can apply some practical application with that data. And that platform nowadays is Python. कल क्या था, कोई और languages थी, Lisp और Prolog AI की ज़्यादा languages कराती थी, लेकिन आज जो है वो Python is very common language. तो not necessary कि you learn all the Python. क्योंकि जब किसी कंप्यूटिंग लैंग्वेज का जिक्र आता है तो हम सब डर जाते हैं कि यार हमें कैसे आएगा, हमें तो इसकी लूप लगानी नहीं आती है, हमें C++, जावा इन सब से डरा के रखा हुआ है हम लोगों ने, हम ही टीचरों ने आपको डरा के रखा हुआ है. I'm so sorry about that. लेकिन ये कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि you should learn something about the Python, not necessarily a lot, but few things. If you learn something, Panda, NumPy, Matplotlib library and Python, अगर आप ये learn कर लेते हैं तो you can dwell a lot with the data. बहुत कुछ आप उस data के साथ काम जो है वो कर सकेंगे. So in that way, other things हम कुछ आप और चीजों को जो learn कर लें, जिसका नाम मैंने भी आपसे लिया कि machine learning. You should learn some terminology. I believe you may learn more than me. कि ये terminology हो सकता है कि मुझको आप लोगों को मुझसे ज़्यादा आती हो, लेकिन you should learn something about the machine learning. इस machine learning के अंदर कुछ algorithm है, k-mean, support vector machine, random forest, blah blah blah, a lot of algorithm. Not necessary you learn all algorithm. A few algorithm अगर आप अपने domain के लिहाज से देख लें कि मेरे लिए कौन सा algorithm ज़्यादा बेहतर है, and you no need to go inside the algorithm, just to think and learn how this algorithm works, what data you give and what is the output. अगर आप इतना भी learn कर लेंगे, a lot of tasks you can perform for your industry and in your working environment, a lot of. और machine learning और deep learning उसकी एक बड़ी बहन आ गई है हमारे पास, because a lot of data की quantity बढ़ती चली जा रही है. हमारी जो existing technology है वो फेल होती चली जा रही है उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए. हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं CPU के साथ, अब वो बेचारे वीक हो गए हैं और वो उस डाटा के साथ प्रोसेसिंग नहीं कर सकते. So new things, new technology, GPU के साथ और new software, deep learning की शक्ल में हमारे पास आ गए. तो you should know about the difference between the machine learning and the deep learning, and I believe you some of the people you know about that. कि अब deep learning के आने से machine learning का एक नया नाम हो चुका है. Anyone can help me? कि machine learning का एक नया नाम आ चुका है, वो क्या? After deep learning, machine learning को एक नए नाम से पहचाना जाता है. छोटा सा इम्तिहान ले तो पता चल जाए संडे के दिन सो रहे हैं कि जाग रहे हैं. शैलो लर्निंग सिंपल सी चीज है कि अगर वो डीप लर्निंग है तो ये दूसरी वाली चीज अब क्या हो गई है आपके पास, शैलो लर्निंग. सो डीप लर्निंग के बाद मशीन लर्निंग हैज बीन चेंज इनटू द शैलो लर्निंग ड्यू टू सम रीजन. फिर मशीन लर्निंग के अंदर डिफरेंट चीजें, मैं उन सब के ऊपर नहीं जा रहा हूं आपके पास. तो ये हमारे पास है कि अगर हम एआई के अंदर कुछ काम करना चाहते हैं तो आफ्टर दैट you may develop your own portfolio and put it on some LinkedIn and some other platform के ऊपर अगर आप डाल देते हैं तो आप engage हो जाएंगे और engage कर लेंगे दूसरी AI community को, and you may be recognized in AI community very soon. तो AI के अंदर अगर आपको काम करना है तो मेरे आपके साथ सिर्फ सजेशन यही है कि थोड़ा सा डाटा के बारे में लर्न कर लें, डाटा को प्रोसेस करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म यानी पाइथन को स्टडी कर ले और थोड़ा सा मशीन लर्निंग को स्टडी कर ले. फिर इन तीनों चीजों को करने के बाद आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तरह के ऊपर एआई कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर दीजिए, तो मे बी कि बहुत अच्छे लोग आपके साथ और मिल जाएं और वो मे भी आपको सजेस्ट करें कुछ और थिंग. सम डेवलपमेंट we have done in our university. This is one of the application that we have developed during the COVID time. NIT University के अंदर के लिए हमने ये बनाया था कि COVID के अंदर people were advised, students were advised to follow SOPs. कि वो कितने डिस्टेंस के ऊपर काम ट्रैवल कर रहे हैं, मास्क लगाया या नहीं लगाया. That their counting was not possible with the normal human being. कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड उनको जितना भी काम कर ले वो that was not possible. So we perform one task. So हमने यहाँ पर कुछ AI की टेक्निक अप्लाई की कि जो people फासले के साथ चल रहे हैं they are in green और जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं वो लोग रेड है. और मेरी स्क्रीन यहाँ पर कट सो अभी हो रही है शायद. हाँ एक्चुअली इन सब की स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारे पास आ रही है, ऊपर लिखा हुआ है, ये स्क्रीन कट गई है यहाँ से.
तो कितने लोग इस वक्त सेफ जोन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, कितने लोग सेफ जोन में नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, सुबह से शाम तक की सारी स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारे पास मौजूद थी कि किस रोड के ऊपर कितने लोगों ने एसओपीज को फॉलो किया, कितने लोगों ने एसओपीज फॉलो नहीं किया, ये सारी स्टैटिस्टिक्स हमारे पास मौजूद थी। तो जो काम एक मैनुअली किया जा सकता था, वी ट्राई और हमने उसको ऑटोमेट करके इस यूनिवर्सिटी को असिस्ट करने के लिए एक चीज डेवलप की। दिस इज अनदर एप्लीकेशन पे जिसके अंदर व्हीकल की काउंटिंग नजर आ रही है। दिस इज नाउ कॉमन, ये रोड अगर आपको अंदाजा हो तो यूनिवर्सिटी रोड हमारे पास है, उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने जो ब्रिज पेडिस्ट्रियन ब्रिज है वहां खड़े होकर हमने एक प्रोटोटाइप इसकी वीडियो रिकॉर्ड की और इसके ऊपर हमने कुछ काम किया। तो अगर आपको याद है कि प्रीवियसली ट्रैफिक की काउंटिंग जो है वो ग्रीन वर्दी पहना के बच्चों को खड़ा कर देते थे रोड के ऊपर और वो काउंट करते थे कि कितने व्हीकल यहां से पास ऑन हो रहे हैं और उसकी बेसिस के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल की लाइटिंग जो टाइमिंग है वो सेट किए जाते थे। हमारी हम भी खैर काम उसी तरह से हो रहा है ऑलमोस्ट कि ट्रैफिक के अंदर कोई गाड़ी है या नहीं, वो 90 सेकंड वो रेड करके खड़ा हुआ तो खड़ा रहता है। बट आइडिया वाज दैट कि इन ट्रैफिक सिग्नल्स को किसी तरह से इंटेलिजेंट बना दिया जाए। तो पहले स्टेप के अंदर उसकी काउंटिंग थी, ट्रैफिक की काउंटिंग, क्लासिफिकेशन की, यहां से कितना ट्रैफिक पास ऑन होता है, कितनी गाड़ियां यहां से जाती हैं, ये सारा का सारा हमने काम किया। वहां सब उसकी स्टैटिस्टिक्स आ रही है कि कितनी गाड़ियां हैं, कितनी चीजें यहां से मूव हो रही हैं। तो ये सारा काम करके हमारा देना था काम, इसको यूज करना जो है वो जाहिर है हमारी अथॉरिटी का काम है कि वो अगर चाहे तो इसको यूज करके कुछ और इसके ऊपर ट्रैफिक सिग्नल्स को जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं। This is another application. Sorry if I am going very fast, so just because of time. So this is another application for the common use for you and for me as well. कि हमारे साथ एक असल प्रॉब्लम ये है कि जब हम मेडिसिन खरीदने जाते हैं तो अक्सर हमें नहीं पता होता कि ये मेडिसिन जो है वो रियल है, फेक है, एक्सपायरी हो गई है, हमारे यहाँ सब कुछ काम सारी चीजें चेंज हो जाती हैं उसके साथ। तो एक कॉमन पब्लिक के लिए ज़रा बड़ा प्रॉब्लम है इसके लिए। तो व्हाट वी डिड, वी परफॉर्म एन AR एप्लीकेशन। दिस इज ऑगमेंटेड एप्लीकेशन की ये मेरे मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन मौजूद है कि जब इस मोबाइल से मैं इसको स्कैन करूंगा तो ये इस तरह से मुझे आउटपुट देना शुरू कर। जैसे आपने अपने मोबाइल से इस मेडिसिन को स्कैन करेंगे, इसके ऊपर ये काइंड ऑफ बबल इसलिए आ रहा है कि उसको सिर्फ अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप बबल को बर्स्ट करेंगे तो इसकी इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसका वेंडर कौन है, ये कब बनी थी, इसको यूज करने के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, व्हाट इंफॉर्मेशन यू वांट टू एम्बेड विद दिस मेडिसिन दैट कम विद योर आवर एप्लीकेशन। तो आइडिया हमने दिया यहाँ पर कि कॉमन पब्लिक के लिए हम अपनी ये वाला सारा काम हर मेडिसिन के लिए हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली इसके लिए पीछे R&D भी है, इसके पीछे कोलैबोरेशन भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। अगर कोई बड़ी कंपनी, कुछ कंपनी ये कर रही है, फॉर एग्जांपल एबेट वाले अपनी मेडिसिन के लिए वाला काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ कि एबेट के लिए। तो इसी तरह से जो कंपनी अगर चाहेगी, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ग्लैक्सो और एबेट और दूसरे जो फार्मा कंपनीज हैं, अगर वो चाहें कि हाँ जी मार्केट के अंदर हमारी सही मेडिसिन कम्युनिटी तक पहुंचे तो they can use this application। इस तरह से एक मॉडल हमने डेवलप कर दिया। अब पीछे सिर्फ हमारा काम डेटाबेस को चेंज करना है और बाकी नई से नई चीजें जो हमारे सामने आती चली जाएगी। This is another application that this is my PhD work, not my the PhD work supervised by me। और आइडिया ये था कि जो फ्लेम होता है फायर का, वो हमारा कैमरा अपनी आंख से जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। अगर वो कोई सीवियर होने के लिए जा रहा है तो वो उसके साथ हम कोई एक्शन परफॉर्म कर लें। दिस वीडियो इज नॉट फ्रॉम माय साइड, लेकिन आइडिया ये था, हमने इसके पीछे सारी पीएचडी का वर्क हमारा है, लेकिन हमारे चाइनीज भाई हमसे 100 गुना आगे हैं, वो ये वाली चीज प्रोडक्ट की फॉर्म में और लेके मार्केट में आ गई है। हमारा काम गरीबों की तरह से हमने रिसर्च की, पब्लिकेशन की और हम लोग सो गए, हमारा काम बस वहां खत्म हो गया। लेकिन सेम आई ऑब्जर्व कुछ दिनों के बाद मैंने देखी तो ये मार्केट के अंदर थी एक वीडियो। तो उसने क्या किया कि कैमरा ने गेज किया फायर को और देखा कि ये फायर का फ्लेम जो है हैजर्डस होने वाला है, तो उसने जो है उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर दिया। बट सेम वर्क वी हैव डन इन आवर पीएचडी रिसर्च कि हमने भी फायर के फ्लेम को कंप्यूटर के आंख से रिकॉग्नाइज करके उसको रिकॉग्नाइज किया कि ये फ्लेम जो है नॉर्मल हॉब का फ्लेम है, कैंडल का फ्लेम है, या ये वाला फ्लेम जो है वो कोई सीवियर होने के लिए जा रहा है। दिस इज अनदर एप्लीकेशन मे बी attractive for you because this is kind of HoloLens application। तो ये हमने साइंस मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए डेवलप की थी। मेडिकल के स्टूडेंट के लिए हमने ये डेवलप की थी कि जिसके अंदर आप देखिए ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी किया जा सकता है। So this is mixed reality application। I believe that you people heard about the VR virtual reality, then second AR augmented reality, and the third one is the mixed reality। So this is the mixed reality application, a virtual model placed in real environment। This is our computer lab and this virtual model is controlled by the human। ये हमारे हाथ की मदद से इसको जो है वो हम कंट्रोल कर रहे हैं। अभी तो ये वीडियो है, बट इन रियलिटी अगर हम अपना ऑकुलस पहन लें और उसके अंदर ये जो मॉडल आ रहा होगा तो मैं इसके एक एक बॉडी पार्ट्स को अलग कर सकता हूँ, इसके हेड को स्टडी कर सकता हूँ, इसकी बैकबोन को स्टडी कर सकता हूँ, इसकी रिब्स को काउंट कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन
ये सारी की सारी चीजें इस एप्लीकेशन के अंदर हमने काम किया। इसके अंदर स्टूडेंट का, मेडिकल के स्टूडेंट का एग्जाम भी इसके अंदर हमने प्लेस किया हुआ है। अगर हम उसको असाइन कर दें कि जनाब ये 10 चीजें बताइए कि इस ह्यूमन की एनाटॉमी के अंदर ये चीज कहाँ है, ये चीज कहाँ है, सॉरी, अगर वो सही आंसर करेगा तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, गलत देगा जो भी कुछ होगा उसकी असेसमेंट जो है तो सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन डेवलप्ड in our center. This is another application. This is AR technology, augmented reality. That was mixed reality. This is one step behind. That is augmented reality. इस augmented reality में real time के अंदर तो मैं नहीं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, but yes we place some buttons. ये buttons इसके अंदर जो नीचे given है आपके पास, इन buttons की मदद से इसकी body के एक-एक parts को हम अलग करके देख सकते हैं। तो this is good for the under स्कूल चिल्ड्रन एज वेल, ये जो साइंस के बच्चे होते हैं जो अपनी बुक्स के अंदर सारी ह्यूमन की एनाटॉमी को स्टडी करते हैं, पिक्चर्स की मदद से देखते हैं, दैट मे नॉट बी वेरी अट्रैक्टिव फॉर देम, बट दिस एप्लीकेशन दिस मे बी अट्रैक्टिव फॉर देम, कि ये इसकी मदद से वो ज्यादा बेहतर तौर पे लर्न कर सकते हैं। ये नीचे जो इसका एक पेपर रखा हुआ है, ये इसका मार्कर कहलाता है आपके पास। इस मार्कर के ऊपर जब मैं अपना मोबाइल लेकर जाता हूँ, ये एप्लीकेशन भी मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है, एनीवन कैन ट्राई दिस। अगर उसका मोबाइल इसको सपोर्ट कर दे तो जब हम इस पेपर के साथ कर लेते हैं तो मेरे मोबाइल के अंदर ये पूरा मॉडल खड़ा हो जाता है और इसके जिस तरह से मैं इसको चाहूं, इसके डिफरेंट पार्ट्स को देखना, इसको 3D मूव करके देखना, इसको टॉप से विजुलाइज करना, बैक से इसको देखना, सारी की सारी इमर्सिव वे के अंदर वी कैन स्टडी दिस ह्यूमन एनाटॉमी। सो दिस इज अनदर मॉडल। दिस एप्लीकेशन for the human anatomy, another similar application we have designed for the I think mechanical car engine as well. मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा थोड़ा सा सिर्फ आइडिया देने के लिए कि यहाँ पर ये भी आपके पास एक AR का मॉडल है आपके पास कि कार का जो इंजन है उसके पार्ट्स को आप अलग अलग करके देखना। जनरली मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनको लैब में लेके जाए और कार के इंजन को मेंट किया जाए, उसको असेंबल और डीअसेंबल किया जाए तो उनके खुद एक तो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, फिर उसके साथ हार्डवर्क बहुत ज्यादा है, खतरा बहुत ज्यादा है खासतौर पे फीमेल के लिए उसके लिए। तो ये डिजिटल जो है वो इंजन है, आप इसके एक एक पार्ट्स को अलग करते चले जाइए, इसको देखते चले जाइए कि इसको स्टडी करना है, इसके पिस्टन कहाँ पर है, इसके मुझे सब सॉरी दूसरे नाम भी याद नहीं पता, लेकिन इसकी हर चीज जो है वो आप सेपरेट करके देख सकते हैं इसके अंदर और गाड़ी के पार्ट्स को सेपरेट करके देख सकते हैं। तो why I am showing these videos for you people just to give some idea what augmented reality, what virtual reality can work for us. A lot of strength in this technology. It is our responsibility to find the strength of this technology and use these technologies for our daily life, for us, for other communities as well. तो ये काम हमने ह्यूमन एनाटॉमी के लिए भी करके दिखाया, हमने मैकेनिकल के लिए भी करके दिखाया और इसी तरह से और दूसरे डोमेन के अंदर भी हमने कुछ काम किए, लेकिन बहरहाल उसके बाद फॉर सम रीजन वी स्टॉप बिकॉज़ इन दूसरे कामों के अंदर हम लोग लग गए और इसको आगे हमने नहीं बढ़ाया। बट सिमिलर टास्क वी हैव डन फॉर द होल इंडस्ट्री के लिए भी हमने काम किया था, नॉट फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बट आई थिंक फॉर मेडिसिन इंडस्ट्री के लिए भी हमने पूरी उनकी लैब इस तरह की डिजाइन करी थी, वो भी हमारे पास मौजूद है, बट एट द मोमेंट आई विल नॉट शो यू दिस। तो ये कुछ एप्लीकेशन है, इस तरह की और भी कुछ एप्लीकेशंस हमने बनाई हैं, लेकिन ये कि अगर मेरे पास आई डोंट नो टाइम है या so 10 minutes, okay, thank you. So this is another application that we have developed in our lab. This is the IoT application, Internet of Things का नाम सुना होगा आपने। Idea was that कि जो people construction industry के अंदर काम करते हैं, mostly they don't follow SOPs. They don't use helmet, they don't wear jacket, they don't wear gloves, and वो काम करने के लिए चले जाते हैं, खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। जब कोई आपके पास इन्वेस्टिगेशन कंपनी या क्या होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आती है तो they don't have any proof। लेकिन ये हमने जो एक एप्लीकेशन बनाई थी वो ये हमने छोटे छोटे सेंसर जो है उनके हेड में, उनकी बेसपोर्ट में और उसमें इंस्टॉल कर दिए, और जब वो अपने काम करने के लिए गया तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है मेरे डेस्कटॉप कंप्यूटर पे भी आ रही है, और अगर वो कुछ वायलेट कर रहा है एसओपी तो उसके अलर्ट मेरे मोबाइल पे भी आ रहे हैं। मैंने उसको भेजा है उस आदमी को 3rd फ्लोर पे काम करने के लिए, लेकिन वो अपनी लोकेशन चेंज करके किसी और लोकेशन के ऊपर चला गया, तो उसकी लोकेशन अगर वो नहीं है जहां पर मैंने उसको टास्क असाइन किया था, मेरे पास उसका अलर्ट आ रहा है। उसने शू पहने हुए या नहीं पहने हुए, उसने हेलमेट पहना हुआ या नहीं पहना, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे डेटाबेस के अंदर उसकी रिकॉर्ड हो रही है, टाइम के साथ, नाम के साथ कि मिस्टर शान उस्मानी ने हेलमेट ऑन किया हुआ है, शूज जो है वो ऑफ किए हुए हैं, लोकेशन उनकी इस वक्त यहाँ पर है। अगर ये सारी चीजें नॉर्मल है तो डेटाबेस में स्टोर हो रही है, जब वो किसी एसओपी को फॉलो नहीं करता तो हमारे पास उसका जो है वो नोटिफिकेशन आ जाता है कि जनाब शान साहब ने ये काम नहीं किया। तो इंडस्ट्री के अंदर ये एप्लीकेशन की बहुत जरूरत पेश आती है हमें कि कौन लोग एसओपी फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो we gave some IoT based solution
this solution we have designed for the construction industry, and same solution can be designed for the other industries as well. So just we gave this idea. So this is computer vision application के उसने helmet पहना है, jacket पहनी है, नहीं पहनी है. तो हमने दोनों का combo बनाया था, computer vision और IoT के साथ मिलाकर ये सारी चीजें हमने बनाई थी. ये सारी की सारी चीजें की थी. तो we believe कि artificial intelligence can change our life. But how? घर बैठे नहीं चेंज कर सकती. इसके लिए यकीनन हमें स्टेप लेना, और एक स्टेप आई बिलीव कि जो आज आप लोगों ने लिया कि संडे के दिन उठ के अपने घर से यहाँ तक तशरीफ लेकर आ गए और अपना कुछ ना कुछ टाइम आपने निकाला. That means we are motivated to learn something. We are motivated to contribute something. So that means we have potential. We just need some guidelines. We just need some people. हमें ऐसे कुछ अच्छे लीडर, हमें कुछ ऐसे लोग, अच्छे असातिज़ा मिल जाएं. I'm not a good असातिज़ा, but other than me some अच्छे कुछ लोग मिल जाएं जो आपका हाथ पकड़ के आप लोगों से कोई और बेहतर काम करवा लें. So this is our. तो ये कुछ AI की टर्मिनोलॉजी में इसमें नहीं जा रहा हूँ. सारा का सारा AI के आने के बाद मशीन लर्निंग आ गई, मशीन लर्निंग के बाद जनरेटिव AI आ गई. जनरेटिव AI ने आजकल आके हमारी दुनिया ही बदल दी है. बहुत सारे लोगों को शायद कुछ आइडिया है GI का, और बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता कि GI क्या चीज़ है, जनरल इंटेलिजेंस. जनरेटिव AI क्या चीज़ है, लेकिन जनरेटिव AI के आगे भी एक और चीज़ आने वाली है जो कि ऑलमोस्ट आ गई है, वो है PI, पर्सनल इंटेलिजेंस. और वो पर्सनल इंटेलिजेंस क्या होगी आपके पास कि मैं अपना मॉडल जो है कंप्यूटराइज्ड मॉडल बना के जो है वो रख दूंगा. नेक्स्ट टाइम पे जब आपको कोई स्पीच के लिए मुझे बुलाना होगा, नॉट नेसेसरी आप मुझे कॉल करें, मेरे मॉडल को आप बाय करेंगे कि जनाब इतने टाइम के लिए आप अपना मॉडल दे दें, और मेरा मॉडल जो है यहाँ खड़े होकर आपके साथ जो है वो स्पीच दे रहा होगा, टास्क दे रहा होगा. रियल टाइम के अंदर जब उससे आप क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे, वो रियल टाइम में आपको आंसर देगा. ऐसा नहीं है कि वो मेरा PI मॉडल जो है पहले से इसके अंदर कोई आंसर फीड होंगे, नहीं, उसमें मेरी इंटेलिजेंस एम्बेडेड होगी. उसमें आइंस्टाइन की इंटेलिजेंस को आप एम्बेड कर दीजिएगा, तो आइंस्टाइन का जो है वो PI मॉडल खड़ा होगा, पर्सनल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट टाइम पे जब आपको अभी लोगों को टाइम दे के बुलाते हैं, आप उनके मॉडल को हायर करेंगे और वो अपने मॉडल को आपको जितना देंगे उसका चार्ज करेंगे. सो दिस टाइम इज नॉट वेरी फार. PI के मॉडल इस तरह से होंगे. चैट GPT और ये सब चीजें बहुत चीजें आ गई हैं हमारे पास. हमें वी शुड लर्न समथिंग अबाउट द जनाब जनरेटिव AI है. एक सिंगल लाइन में अगर मैं जनरेटिव AI को लेके फिर आगे चला जाऊं. Generative AI means the machine will be able to generate intelligent machine by itself. कि generative AI means कि मशीन खुद जनरेट कर रही होगी अपने जैसी दूसरी मशीन. लाइक अल्लाह पाक ने इंसान का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है जिसके तहत हम अपने जैसे दूसरे इंसान हमारे दुनिया में आते चले जा रहे हैं. मशीन की तरह से दूसरी मशीनें कैसे आएंगी विद द हेल्प ऑफ जनरेटिव AI, एंड दिस हैज बीन ऑलमोस्ट डन. कि मशीन की वजह से दूसरे नए नए सॉफ्टवेयर जो हैं वो आप लेते चले जाएंगे, दूसरी इंटेलिजेंट मशीनें आती चली जाएंगी. ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के नाम है जिनका हमें पता होना चाहिए अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं. चैट GPT क्या कर सकता है, IBM का वाटसन क्या कर सकता है, गूगल का AI क्या कर सकता है. फॉर इन्फॉर्मेशन आई गिव ऑल द लिंक समथिंग कि अगर जो लोग रीड आउट करना चाहें, पढ़ना चाहें, ये सारी चीजें कर सकते हैं. फिर जनरेटिव AI की मदद से वॉइस जनरेट की जा सकती है. मेरे जैसी वॉइस आप जनरेट कर लेंगे जनरेटिव AI के टूल की मदद से. आपको पता है कि इस तरह के काम हो भी चुके हैं और इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स भी सामने आना शुरू हो गए. कि किसी फादर के पास उसकी डॉटर का फोन आया कि जनाब मुझे किडनैप कर लिया गया और इतना रैंसम दे आर आस्किंग फॉर दैट, एंड फादर वाज सरप्राइज और उसने जो है वो उसका रैंसम भी दिया. मैंने आई हर्ड अबाउट दैट. वजह क्या थी, और उसकी बेटी की सिर्फ वॉइस को कंप्यूटर की मदद से दोबारा से जनरेट करके वही अल्फाज बुलवा दिए गए जो वो बुलवाना चाहते थे. और ये काम होने वाला है. हम सबको वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट. बहुत सारे जो फेक बैंक के अंदर ये सब चीजें, टेक्नोलॉजी आने से न सिर्फ फायदे भी हैं लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं. हमारे बैंक अकाउंट अल्लाह ना करे सेकंडों के अंदर खाली भी हो सकते हैं. हमारे अपने साथ बहुत सारी चीजें जो है प्रॉब्लम हो सकती हैं. तो अक्सर इस तरह की चीजें, बट वी शुड लर्न समथिंग. दीस टूल्स कम से कम हमें पता तो हो कि हाँ ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, तो खुदा ना खास्ता अगर मुझे कोई कॉल आए तो मैं फौरन जो है वो आगे ना बढ़ जाऊं, बल्कि पहले थिंक करूं कि यार ये इज रियली अ फेक. अगर हमें नहीं पता होगा तो खुदा ना खास्ता हम लोग इस टेक्नोलॉजी के हाथों ट्रैप हो जाएंगे. ये बहुत सारी चीजें आपके पास. और ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड मेरे पास ये टेक्नोलॉजी और क्या करने जा रही है आपके पास. एनवीडिया और Amazon, ये दोनों बड़ी कंपनी के नाम में आए हो कि आप लोग जानते होंगे. एनवीडिया और Amazon तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए कुछ कंपनीज को दिए हैं. और वो कंपनीज क्या कर रही हैं कि इस AI के लिए मिनिएचराइजेशन के ऊपर जो जा रही हैं कि हमारे जो आंखों का जो लेंस, जो नॉर्मल हम लोग लेंस यूज करते हैं, उस लेंस को डिजिटल लेंस में कन्वर्ट कर दिया. ये कर रहे हैं. हमारे पास तो बहुत देर से चीजें आती हैं, जैसे गाड़ियों के जब मॉडल पुराने हो जाते हैं तब हमारे पास चीजें पाकिस्तान के अंदर आती हैं. जब नेक्स्ट और उसके कपड़े बिल्कुल आउटडेटेड हो जाते हैं तो पाकिस्तान में सेल के लिए आते हैं. ऐसी टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट जब आउटडेटेड हो जाती है तब हमारे पाकिस्तान में पहुंचेगी. बट आई बिलीव कि दिस हैज बीन अचीव्ड
द अदर पीपल कि उन्होंने इस तरह का लेंस बना भी लिया है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा लेंस हमारे पास होगा कि वो हमारी आंख के अंदर जब वो लग जाएगा तो डिजिटल लेंस होगा, एंड दैट डिजिटल लेंस जो है वो पूरी यहाँ बैठे बैठे आप पूरे हॉल को स्कैन कर लेंगे कि कौन साहब बैठे हैं, कौन कहाँ बैठा है। अगर मैं किसी मार्केट के अंदर जा रहा हूँ तो उस मार्केट के अंदर तमाम शेल्फ्स के अंदर जो चीजें लगी हैं वो इस डिजिटल लेंस की वजह से मैं स्कैन कर लूंगा कि कहाँ एक्सपायर्ड चीजें रखी हुई हैं, कहाँ इन्होंने आउटडेटेड चीजें रखी हुई हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी अचीव्ड विद इन सेकंड्स के अंदर हम सारी चीजें स्कैन कर लेंगे इस डिजिटल लेंस की वजह से। दिस ऑलमोस्ट हैज बीन डन। कुछ और चीजें हैं या मैं अपने वैसे इसका डेमो दिखाता हूँ कि जो नॉर्मल हम लोग अपने ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएं तो इस तरह के 3D मॉडल ग्राफ आपके पास इंटरैक्टिव मॉडल 3D ग्राफ बनकर आएंगे वीडियो की शक्ल के अंदर। तो अगर आप कहीं जॉब करते हैं और अपने बॉस को खुश करने के लिए प्रेजेंटेशन देनी है तो यू मस्ट यूज दीस टूल्स। वो कि बॉस आपका करके कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी यू कैन ट्राई। सो डिजिटल आई जो है वो आपकी चीजों को स्कैन करके खुद बता देगी कि ये चीज आउटडेटेड रखी है या सही है आपके पास या नहीं है, समथिंग। एक और नई चीज जो आने वाली है हमारे पास, ऑलमोस्ट इसके ऊपर भी काम हो गया है, इंटरनेट गोइंग टू बी ऑब्सोलीट। पहले इंटरनेट के पासवर्ड पूछते फिरते थे किसी से कि यार पासवर्ड बता दो, किसी का पासवर्ड नहीं जमा। आज इतना चीप है कि मैं किसी मार्केट में जाता हूं मेरा मोबाइल ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, एंड दिस आल्सो बी गोइंग टू ऑब्सोलीट, ये भी खत्म होने वाला है आपके पास। और अब आपका इंटरनेट जो है खत्म होकर किस नई टेक्नोलॉजी में जा रहा है, दैट इज ब्रेन नेट। ब्रेन नेट की टेक्नोलॉजी आ रही। व्हाट इज दैट? कि कोई छोटी सी स्मॉल चिप जो है वो आपके पास इंस्टॉल कर दी जाएगी और वो चिप मेरे और आपके दरमियान जो है कम्युनिकेशन क्रिएट कर देगी। अभी मैं मोबाइल से आपको मैसेज भेजता हूं, मैं ब्रेन से आपको मैसेज भेजूंगा और ये हमारे काम होंगे। नो डाउट कि पीछे फायरवॉल लगी हुई होंगी, अभी भी मैं मोबाइल से ऐसी मैसेज ही भेज देता जब तक कि आपका कांटेक्ट ना हो, जब तक मेरे पास आपके नंबर की रसाई ना हो। इसके पीछे एथिकल लॉज लगेंगे कि कौन किसके ब्रेन को स्टडी कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वरना तो हमारे अंदर की ख्वाहिशात भी आपको पता चल जाएंगी कि मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं तो बुरा नहीं सोच रहा था, तो आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, एवरीथिंग यू कैन लर्न। दिस इज ब्रेन नेट टेक्नोलॉजी। और ऑलमोस्ट इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल हो चुका है, अगर आपको पता हो, शायद किसी ने पढ़ा होगा, छोटी सी चिप किसी इंसान के पीछे जो है वो इंस्टॉल कर दी गई है। तो ये चीजें आ रही हैं यहाँ पर। तो ये इंटरनेट जो है ब्रेन नेट में खत्म होके, और जो पहले एक क्रम होता था टेलीपैथी, आई थिंक टेलीपैथी, वो टेलीपैथी इज गोइंग टू चेंज इन डिजिटल पैथी। आई थिंक मैंने शायद नाम लिखा होगा इसका कहीं कि डिजिटल पैथी के अंदर वो चीज आ जाएगी। यस, डिजिटल टेलीपैथी जो है वो होने जा रही है। I think thank you very much. I took a lot of time. मेरा ख्याल से ये भी है जो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, सॉरी काफी टाइम जाएगा। आखिरी चीज बस चलने लगे तो ये भी आई थिंक ये मेरी लास्ट राइड है, मतलब बहुत सारी चीजें कि मेरे और आपके एवाटार्स बनना शुरू हो जाएंगे और बन रहे हैं। ये जो जनरेटिव एआई की मदद से अभी जो काम हो रहा है ग्राफिक्स के अंदर, 2D के अंदर काम हो रहा है, 3D के अंदर मेरा और आपका एवाटार बन जाएगा, डिजिटल एवाटार होगा। अब वो अगर मेरा एवाटार होगा और मैं आइंस्टाइन का भी एवाटार बना दूंगा तो हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे होंगे और किसी को ये नहीं पता चलेगा कि मैं रियल टाइम के अंदर मैं आइंस्टाइन से मिला हूं या ये कोई पुरानी वीडियो। ये शाहरुख खान के और हेमा मालिनी के एवाटार्स बन जाएंगे आपके पास, और आप उनको फिल्म में साइन करने के बजाय उनके एवाटार्स को साइन करेंगे और वो अपने एवाटार्स की कॉस्ट आपसे चार्ज करेंगे। ये होगा आपके पास, वो खुद नहीं आएंगे फिजिकली, वो कहेंगे ओके हम साइन करते हैं, आप मेरे एवाटार्स को किस तरह से यूज करेंगे, वो मुझसे एसओपी एमओयू साइन करा लेंगे, इसको किस किस चीज के लिए किस किस तरह से यूज करेंगे, और आप उसके एवाटार को इस्तेमाल करके पूरी डिजिटल फिल्म जो है वो बना लेंगे और लोगों को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि आइदर ही इज रियल शाहरुख खान या ये एवाटार है इसका। So this is going to be happening with the help of AI and something else. Thank you very much for bearing me. Thanks a lot.